Hello, good morning friends. Myself Jatin from Asapura School and welcome all of you once again. Dear students, जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 12 जो कि हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर नंबर 12 आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली टेक्सचुअल एग्जाम्पल के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स आपके साथ शेयर किया था, आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अब बारी है कुछ टेक्सचुअल एग्जाम्पल के साथ आपको फिर से लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट को डिस्क्राइब करने की। So let's start now. Example number 1. Find the value of 2 raised to minus 3 and 1 upon 3 raised to minus 2. So solution is first one. 2 raised to minus 3 is equal to 1 upon 2 raised to 3 is equal to 1 upon 2 multiplied by 3 times. That means 2 multiply 2 multiply 2. 2 to the 4 and 4 to the 8. So finally we get 1 upon 8. Second one. 1 upon 3 raised to minus 2, we can write here 3 square, and 3 square means 3 multiplied by twice, 3 3s are 9. Now example number 2, simplify. First of all, minus 4 raised to power 5 multiply minus 4 raised to power minus 10. So here both the numbers have the same base, so we can try to summation of the exponent here, and therefore minus 4 raised to power 5 plus minus 10. 5 plus minus 10 is equal to minus 5. So therefore we get minus 4 raised to power minus 5, and we also write here 1 upon minus 4 raised to power 5. Second one, 2 raised to 5 divided 2 raised to minus 6. So by using the law of the division a raised to m divided by a raised to n, we get a raised to m minus n. So we can write here 2 raised to power 5 minus into bracket minus 6. Now the second stage of the simplification, minus minus plus. So 2 raised to power 5 plus 6 is equal to 11. So finally we get 2 raised to power 11. One more example here, express 4 raised to minus 3 as a power with the base 2. So we have 4 means 2 multiplied by 2, that means 2 raised to 2. Therefore 4 raised to minus 3, that means into bracket 2 multiply 2 whole raised to power minus 3, that means 2 square whole raised to power minus 3. Now by using the law power of power, therefore we can write here 2 raised to power 2 multiply minus 3, 2 multiply minus 3 plus minus minus, and 2 3s are 6. So finally we get 2 raised to power minus 6. One more example here, example number 4 now on your screen. Simplify and write the answer in the exponential form. 2 raised to power 5 multiply 2 raised to power 8 bracket over whole raised to power 5 multiply 2 raised to minus 5 इक्वल टू, नाउ देखिए सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम डिवीजन रूल्स का यूज़ करेंगे। 2 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 होल रेस्ट टू पावर 5। अब अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओवर करने के बाद हमको रिमेनिंग टर्म्स भी लिखना है 2 रेस्ट टू पावर माइनस 5। देखिए फिर से एक बार अच्छी तरह से यहाँ केयरफुली ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में 2 रेस्ट टू 5 डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट टू 8 होल रेस्ट टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू माइनस 5। तो सबसे पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं डिवीजन रूल्स का यूज़ करते हुए। सो 2 रेस्ट टू पावर 5 माइनस 8 होल रेस्ट टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू पावर माइनस 5। नाउ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 रेस्ट टू पावर माइनस 3 होल रेस्ट टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू पावर माइनस 5। अब हमारे पास दो नंबर है। सबसे पहले तो जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें पावर ऑफ पावर का यूज़ करेंगे। सो 2 रेस्ट टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 2 रेस्ट टू पावर माइनस 5, एंड देन वी गेट 2 रेस्ट टू पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू पावर माइनस 5। सो फाइनली वी गेट 2 रेस्ट टू पावर माइनस 15 माइनस 5। कुल मिलाकर the sum of the negative integers is always negative integer, and therefore we can write here
2 raised to power minus 20, दैट मीन्स 1/2 raised to 20। ये हुआ पहला सॉल्यूशन। अब दूसरे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। -4 raised to -3 मल्टीप्लाई 5 raised to -3 मल्टीप्लाई -5 raised to -3। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन करेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर देखिए तीनों का एक्सपोनेंट सेम है -3, तो तीनों के बेस हम एक बिग ब्रैकेट में ले लेंगे। -4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई -5 होल रेज टू -3। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20, तो पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा -20। इस मल्टीप्लिकेशन को हम थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 25 ज़ा 100 होगा। तो हमें आगे का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 100 रेज टू पावर -3 एंड वी कैन राइट हियर फाइनली 1/100 रेज टू पावर 3 बाय यूजिंग द लॉ a रेज टू m मल्टीप्लाई b रेज टू m इज इक्वल टू ab होल रेज टू m। और दूसरा हमने इस्तेमाल किया a रेज टू -m इज इक्वल टू 1/a रेज टू m को। तीसरा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू -3। सो वी कैन राइट हियर 8 इज द multiplication of 2 by thrice time, multiplication of 2 by thrice, so we can write here, मतलब कि 8 है, इसे हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर रहे हैं। 8 है वो 2 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू -3 इज इक्वल टू 2 रेज टू -3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू -3। देखिए फिर से एक बार, यहाँ दोनों का नेगेटिव एक्सपोनेंट कॉमन है, तो बेस को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हुए 2 मल्टीप्लाई 3 होल रेज टू -3, दैट मीन्स 2 3 ज़ा 6 होल रेज टू -3, therefore we can write here 1/6 रेज टू 3। एक और सिंप्लीफिकेशन आपके स्क्रीन पर, -3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 5/3 रेज टू 4, therefore we can write here -1 multiply 3 all raised to 4 multiply 5 raised to 4 upon 3 raised to 4, so we can write here -1 raised to power 4 multiply 3 raised to power 4 multiply 5 raised to power 4 divided 3 raised to power 4। अब यहाँ पर देखिएगा 3 रेज टू पावर 4 इंटीजर में और 3 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड में है 5 रेज टू 4 के नीचे। ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। 3 रेज टू पावर 4 कट बाय 3 रेज टू पावर 4 एंड फाइनली वी गेट नाउ -1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 प्लस माइनस माइनस, और हम यहाँ पर राइट करेंगे होल रेज टू पावर 4। तो फाइनली हमें मिलेगा -1 रेज टू पावर 4 करने से हमें 1 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, सो 1 1 ज़ा 1। तो इस तरह से -1 रेज टू पावर 4 का हमें सिंप्लीफिकेशन 1 मिलेगा, और 1 को 5 रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करने से 5 रेज टू 4 हमें आंसर मिलेगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ एंड फाइंड द m सो दैट -3 रेज टू पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू -3 रेज टू पावर 7। यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो कि दो वैल्यूज़ दिए हैं, दो टर्म्स दिए हैं, -3 रेज टू पावर m प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 रेज टू पावर 5, और राइट साइड पर एक टर्म है -3 रेज टू पावर 7। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है। दूसरा, लेफ्ट साइड पर सेम बेस के साथ दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करवाना है। सो बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल्स वी कैन राइट हियर -3 रेज टू पावर m प्लस 1 प्लस 5, therefore we get in the right side -3 raised to power m plus 6 equal to right side -3 raised to power 7. Now on the both side power have the same base, different from 1 and -1, so their exponent must be equal, and therefore now compare the exponent both the side and we get m plus 6 is equal to 7. Now plus 6 is transposing to the right hand side and we get m is equal to 7 minus 6 is equal to 1. So here unknown m is equal to 1. Dear students, a raised to n is equal to 1 only if n is equal to 0, and this will work for any a
accepts a is equal to 1 or a is equal to minus 1. For a is equal to 1, a raised to power 1 equal to raised to power 2 equal to raised to power 3 equal to 1 raised to power minus 2 and equal to 1 or 1 raised to power n is always 1 for infinity many times n. And if we get a is equal to minus 1, therefore a minus 1 raised to power 0 is equal to minus 1 raised to power 2 equal to minus 1 raised to power 2 is equal to minus 1 raised to power minus 2 is always equal to 1 or minus 1 raised to power p equal to 1 for any even integer p. ओके, आगे चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चंस के साथ. आपके स्क्रीन पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2/3 होल रेज़्ड टू माइनस 2. ब्रैकेट को ओपन करेंगे और दोनों को सेपरेटली लिखेंगे. 2 रेज़्ड टू माइनस 2 अपॉन 3 रेज़्ड टू माइनस 2. 2 रेज़्ड टू माइनस 2 दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 1/2 स्क्वायर एंड 3 रेज़्ड टू माइनस 2 को हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. तो यहाँ पर आगे का जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो इस तरह से होगा. दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने हैं तो 2 रेज़्ड टू माइनस 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और 3 रेज़्ड टू माइनस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा न्यूमरेटर में. सो वी कैन राइट हियर 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 बाय 2 2 ज़ा 4. क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दो सिंप्लीफिकेशन के साथ. सबसे पहले बिग ब्रैकेट में 1/3 होल रेज़्ड टू माइनस 2 माइनस 1/2 होल रेज़्ड टू माइनस 3 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़्ड टू माइनस 2. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेपरेट कर रहे हैं हर एक का ब्रैकेट. सो वी कैन राइट हियर 1 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 बाय 3 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 बाय 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 ब्रैकेट ओवर इज डिवाइडेड बाय 1 रेज़्ड टू माइनस 2 बाय 4 रेज़्ड टू माइनस 2. सो वी कैन राइट हियर नाउ. फिर से एक बार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स राइट करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उल्टा सुल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब अपॉन 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर. सो 3 3 ज़ा 9 बाय 1 माइनस 8 बाय 1. सो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 is divided 16 by 1 means 16. So 1 divided by 16 that means 1 by 16 is the simplification. Now simplification number 2, 5 by 8 whole raised to 7 multiply by 8 by 5 whole raised to minus 5. So we can write here 5 raised to minus 7 divided by 8 raised to minus 7 multiply 8 raised to minus 5 divided 5 raised to minus 5. Now 5 raised to minus 7 divided by अब अरेंज कर रहे हैं सेम बेस के साथ. सो 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज़्ड टू माइनस 5 मल्टीप्लाई 8 रेज़्ड टू माइनस 5 अपॉन 8 रेज़्ड टू माइनस 7. अब हम यूज़ करेंगे डिवीज़न रूल्स का और एक्सपोनेंट इस माइनस करेंगे. सो 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 7 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 माइनस माइनस 7. तो आखिर हमें मिलेगा 5 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 बिकॉज माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5. सो माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 7. सो माइनस 5 प्लस 7 is equal to 2. So we get 5 raised to minus 2 multiply 8 raised to 2 and we can write here 8 square divided by 5 square. 8 square means 8 8s are 64 and 5 square means 5 5s are 25. तो ये थे आपके टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स 1 से लेकर 7 तक. डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी बारी है. आपको इससे प्रैक्टिस करके आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशन के साथ. तब तक के लिए आज का होमवर्क याद रखिए. पूरे टेक्सचुअल एग्जाम्पल को आप कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो की राह देखते हुए. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.